sir. Okay, okay. So in the last class, we were discussing about the chemical reactions of the amino acids, in which we have discussed the reactions which are due to the presence of the amino group. And first reaction was alkylation. The second reaction was acylation, in which we have done acetylation as well as the benzoylation. And benzoylation in presence of the aqueous NaOH, 10% aqueous NaOH, is called Schotten-Baumann reaction. So we have completed till here. Am I right? Yes, sir. Okay, now today we will start the reactions due to carboxylic group. You know, amino acid contain a carboxylic groups. So these reactions are due to the presence of this carboxylic group in the amino acid. The first reaction is esterification. So you all are aware about the esterification reaction? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है esterification? Sir, when HD group reacts with alcohol in the presence of concentrated H2SO4, it gives the ester and water. Okay, Where not constant. concentrated, yes, sir, where concentrated H2SO4 is used as a catalyst or dehydrating agent. Okay. So in presence of acid catalyst, if we are reacting a carboxylic acid with a alcohol molecule, then we will get the ester. Okay, so here you can see your amino acids are found in G-triene form, and when we treat this amino acid with the alcohol, generally we use ethanol. We can also use methanol and other alcohols as well in presence of the dry HCl. In presence of the HCl, that is acid catalyst. Okay, so you will get the esterified derivative, but in form of the hydrochloric acid salt. This is ammonium chloride. Okay, so we have to neutralize this excess acid which have been used as catalyst has to be neutralized to get the free amino group, so that we get only esterified derivative. And you can see here this is the salt form, and we have to get the free amino group. So we can do that by treating the salt obtained with sodium carbonate, and here we have to use the mild base, not a base like sodium hydroxide. Otherwise what will happen? If we are using a strong base here, then what will be the result? Instead of using this sodium carbonate, which is a mild base compared to the sodium hydroxide, कर सकते हैं ना NaOH भी यूज न्यूट्रलाइज करने के लिए. We are supposed to neutralize the HCl. Are you Yes, getting sir. my point? Yes, sir. कुछ बता सकते हो आप क्यों हमने सोडियम कार्बोनेट माइल्ड बेस यूज किया रादर देन यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? Because if we will use sodium or potassium hydroxide which are strong base, then they will also hydrolyze the ester bond. Ester group will again hydrolyze to the carboxylic group, so our yield will reduced. जो हम करना चाह रहे हैं वो वापस से रिएक्शन रिवर्ट हो गई, बिकॉज वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस कैन हाइड्रोलाइज this ester bond as well as it will neutralize this hydrochloric acid. That's why we are supposed to use a mild base, sodium carbonate. It will only neutralize this HCl, but your ester group will remain intact. So that is the way by which you can convert your amino acid into the esterified derivative. ठीक है, तो इसका एक बेनिफिट क्या है? आगे हम लोग जब पेप्टाइड सिंथेसिस करेंगे, वी कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर deactivation of this carboxylic group, because these esters are slow reacting compared to this carboxylic group. So whenever we need to protect this carboxylic group and we want that it do not take part in the reaction, we can easily protect that, or you can easily deactivate that by doing this esterification reaction.
आगे हम करेंगे डिस्कस। तो ये चीज आप माइंड में रखना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्ट उसके लिए, डीएक्टिवेशन के लिए वी कैन यूज दिस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम इसमें क्या होती है अगर हम इसको यूज करें, when we use HCl and this alcohol, because when we do hydrolysis, ठीक है, तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे टू दिस, whenever we are doing any protection और deactivation, जो हम कर रहे हैं प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम, so finally we have to deprotect that back। कभी भी अभी आपको बताऊंगा आगे, जैसे हमने अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, अमीनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमने ये बेंजोइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहां हमने प्रोटेक्ट तो कर दिया, व्हेनेवर वी आर डूइंग प्रोटेक्शन वी हैव टू डी प्रोटेक्ट दैट आफ्टर द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को यूज करते हैं जिनको हम इजीली बाद में डी प्रोटेक्ट भी कर सके, और अगर हम डी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते देन इट विल नॉट बी ए सुटेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने इसको एसिटाइल ग्रुप से प्रोटेक्ट कर दिया अमाइनो ग्रुप को, सो दैट इट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो प्रोटेक्ट किया, जब हम बाद में इसको हाइड्रोलाइज करेंगे देन वी कैन गेट अमाइनो ग्रुप बैक। हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ये एमाइड बॉन्ड विल अगेन कन्वर्ट इनटू द अमीनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे बेंजोइलेशन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अमीनो ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, बेंजोइल ग्रुप जो हमारा लगा है उसको फाइनल रिएक्शन के बाद जब हमें इसको डी प्रोटेक्ट करना है, वी कैन इजिली डू दैट बाई डूइंग हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। तो बेस की प्रेजेंस में जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये अमाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल गेट द NH2 एंड COH ग्रुप बैक, बिकॉज एमाइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अमीन्स। क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो Yes, अमीनो sir. ग्रुप का प्रोटेक्शन हुआ। अगर हमें सपोज करो कि अगर ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताई एस्ट्रिफिकेशन, वी कैन यूज दिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यू कैन से वी कैन यूज दैट फॉर द डीएक्टिवेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डी प्रोटेक्ट दैट ऑल्सो। तो अगर हम इसको डी प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वी कैन डू द एसिडिक सॉरी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे लाइक NaOH और KOH, देन वी कैन गेट इट बैक। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप वापस से फ्री हो जाएगा, और जो ये हमारा जो C2H5 इट विल कन्वर्ट इनटू द C2H5OH, जो कि हमारा इनिशियली बना भी किससे था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो एस्टर्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप बैक। तो ये है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम ये मेथड यूज करते हैं फॉर द डीएक्टिवेशन, अगर हम जब हम डी प्रोटेक्ट करेंगे यूजिंग एक्वस NaOH और एक्वस KOH, देन दिस विल आल्सो हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड्स। जब हम पेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कौन से होते हैं, CONH, विच आर बेसिकली एमाइड लिंकेज। तो एमाइड्स भी देखो, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे जो ये एमाइड बॉन्ड बन रहा है, एमाइड बॉन्ड कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज्ड बाय द बेस। तो जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे बेस से, along with this deprotection of this carboxylic group, it will also hydrolyze the peptide bonds। तो एक बेटर अल्टरनेटिव क्या है इसके लिए, एस्टिफिकेशन ही हम करेंगे, बट यूजिंग सम डिफरेंट रिएजेंट्स which will not require the base to deprotect the carboxylic group। तो ये चीज समझने की है सिर्फ। तो यहां देखो हमने वही एस्टिफिकेशन रिएक्शन की है, वी आर यूजिंग हियर दिस अमीनो एसिड and we are treating this with benzyl alcohol rather than using ethanol। This is the difference here, we are using here benzyl alcohol in presence of the benzene sulfonic acid, so it will act as a acid catalyst। रिएक्शन सेम है, वही एस्ट्रिफिकेशन यहाँ पे, एस्ट्रिफिकेशन ही यहाँ पर है। so it will protect your carboxylic group by converting that into the ester। तो यह बेंजाइल एस्टर बन गया हमारा CH2C6H5। तो ये हमने प्रोटेक्शन कर दिया, एस्टर ही बना है, ये भी एस्टर बॉन्ड ही है। इसके बाद हमारे पास ये बन गया बेंजाइल एस्टर बेंजीन सल्फोनेट, बिकॉज जो हमारा जो काउंटर आयन था C6H5COSO3 नेगेटिव, so this will get protonated, NH3 will protonated because of the presence of the acid, so it will convert into the salt form। तो बाद में हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो हमारा हाइड्रोलाइज के बाद में क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इफ यू डू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, या फिर हाँ सोडियम कार्बोनेट से करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये
न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसा आपने HCl न्यूट्रलाइज किया था, सिमिलरली यू कैन न्यूट्रलाइज दैट एंड यू विल गेट द अमाइनो ग्रुप बैक, फ्री हो जाएगा अमाइनो ग्रुप आपका। अब देखो यहाँ क्या एडवांटेज है ऑफ, इफ यू कंपेयर दैट विद द इनिशियल रिएक्शन इन विच वी हैव यूज्ड इथेनॉल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। यहाँ हमें डी प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, वी हैव टू यूज द बेस and which has the disadvantage that it can also hydrolyze the peptide bonds और amide linkage। यहाँ पे क्या है, हम लोग को ना बेंजाइल एस्टर बनाया है, तो बेंजाइल एस्टर कैन ऑल्सो बी deprotected using this hydrogen, this palladium charcoal under hydrogen gas atmosphere। पैलेडियम ऑन चारकोल, इट इज ए कैटलिस्ट जो कि हमारे पास कॉमर्शियली अवेलेबल होता है, ठीक है। चारकोल, चारकोल इज ए कार्बन, ठीक है। तो चारकोल के में हम मिक्स करके रखते हैं पैलेडियम मेटल, ठीक है। सो पैलेडियम ऑन चारकोल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन गैस का बलून लगा देंगे या हाइड्रोजन गैस की सप्लाई कर देते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उससे क्या होगा, योर बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम हेयर एंड यू विल गेट दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप बैक। तो देखो यहां हमने प्रोटेक्शन किया इसका, यहां क्या हो गया, ये वापस से डी प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। सो वी कैन यूज दिस मेथड फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। So rather than using this alcohol, we can use this method. It has the advantage that we can deprotect the carboxyl group without using a basic hydrolysis condition। तो जब आपने यहाँ बेस हाइड्रोलाइज किया नहीं है तो ये स्पेसिफिक है, खाली एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, रिमेनिंग बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स विल नॉट break down during the reaction। Clear to everyone? Any doubt? नो सर। ठीक है, सेम रिएक्शन है एस्टिफिकेशन, बस मैंने आपको दोनों में कंपेयर करके बता दिया है कि अगर हमें प्रोटेक्शन पर्पज के लिए यूज करना है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना बेटर रहेगा। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और SOCl2। ये भी बहुत सिंपल एंड कॉमन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। व्हाट विल हैपन इफ वी ट्रीट ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl5, PCl3 और SOCl2? कौन बताएगा? साथ साथ लिखते रहना ये रिएक्शन जो मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे। PCl5 और PCl3 के साथ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? सर अगर PCl3 के साथ करते हैं तो RCl और H3PO3 बनता है, और आप PCl5 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो POCl3 और प्लस HCl और RCl बनता है, मतलब हलाइड। RCl और नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलती कर गए, हैलाइड नहीं बनता है। और बताओ, और कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की या कार्बोक्सिलिक सर एक बार एसिड? और ट्राई करूं? सर कार्बोनिल हाँ क्लोराइड। एसिड के साथ मतलब PCl3 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो CH3COCl प्लस H3PO3 बनेगा, और अगर PCl5 के साथ करेंगे तो सर CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। हाँ, अब ठीक है। एसिड हैलाइड्स बनते हैं, एसिड क्लोराइड बनेगा क्योंकि हमने PCl5 यूज किया, PCl3 यूज किया है, ठीक है। अगर PBr3 या PBr5 यूज करेंगे तो हमारा एसिड ब्रोमाइड बनेगा। सो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू द एसिड हैलाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एसिड हैलाइड बनते हैं हमारे, और SOCl2 से भी क्या बनता है, सेम एसिड हैलाइड ही बनता है, बट SOCl2 has advantage of use that if we are using this SOCl2 then the byproducts will be HCl and SO2 which are gaseous in nature, ठीक है। so we are not supposed to do any purification because these are gaseous, so they will be eliminated very easily from the reaction। तो बाकी दोनों का सेम ही है। देखो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जब अगर डायरेक्ट अगर हम अमीनो एसिड को यूज करेंगे देन योर PCl5 एंड PCl3 विल आल्सो रिएक्ट विद द अमीनो ग्रुप, ठीक है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट,
और प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको ऊपर रिएक्शन बताई थी, वी कैन यूज बेंजोइल क्लोराइड in presence of the aqueous NaOH. What is the name of this reaction? कौन सी रिएक्शन है ये? नेम रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, ऊपर जरा एक बार देखो, आपने लिखा होगा तो स्कॉटन बोमन। हाँ, सॉटन बॉमन रिएक्शन है, दिस इज सॉटन बॉमन रिएक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा प्रोटेक्शन हो गया अमाइनो ग्रुप का। हमने प्रोटेक्शन क्यों किया? सो दैट इट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। अब हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। If we treat this with SOCl2, so what will happen? It will convert into the acid halide derivative, COCl. ठीक है। और आप जो बता रहे थे, पहले बता रहे थे, वो बता रहे थे CHCl, which is wrong. सही क्या है? एसिड हैलाइड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। तो सर विद SOCl2 एंड PCl3 एंड PCl5 सर हमारा एसिड हैलाइड बनता है, यही बिल्कुल। है ना सर? और हाँ SOCl2 के बाय प्रोडक्ट SO2 प्लस HCl, जब हाँ PCl5 से करेंगे तो POCl3 प्लस HCl, और जब PCl3 से करेंगे तो H3PO3। सर यही है ना सर? अच्छा, हाँ बिल्कुल, यही यही मैंने लिखा हुआ है। बस एडवांटेज क्या है, देखो हमने अगर PCl5 यूज किया तो हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा है POCl3 अलॉन्ग विद दिस एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड यहाँ बन रहा था, एसिड हैलाइड ही यहाँ पे बन रहा है, दोनों में एसिड हैलाइड बनेगा। और अगर हमने PCl3 यूज किया देन 3 मोल्स ऑफ दैट विल रिएक्ट एंड यू विल गेट H3PO3। ठीक है, 11th-12th क्लास की रिएक्शन है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, आप देख रहे हो ना, मेनली क्या है, एक तो हमारा ये एसिड हैलाइड हो गया एंड POCl3, और यहाँ पे H3PO3 है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा टू गेट दिस कंपाउंड। ठीक है, टू गेट दिस कंपाउंड in pure form we need to eliminate these byproducts H3PO3 and POCl3। करना पड़ेगा हमें प्योरिफिकेशन, इसका मतलब because we are having byproducts here, but when we are using this SOCl2 it will act as a solvent as well as a reagent। तो जब आप SOCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये आपका डायरेक्ट COCl बन जाएगा, एसिड क्लोराइड, along with byproduct SO2 and HCl, and these are gaseous in nature। अब गैसियस है तो क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर से अपने आप ही उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो इवॉल्व हो गए, रिएक्शन से बाहर निकल गए। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, प्योर कंपाउंड मिलेगा, वी विल नॉट गेट द बाई प्रोडक्ट्स। जो सॉल्वेंट है SOCl2 उसको हम बाद में वैसे उड़ा देंगे बाय डूइंग डिस्टिलेशन एंड अदर मेथड्स। so we are not supposed to do purification, we will get this pure product directly। so that is the advantage of using SOCl2। clear to everyone? काम दोनों का एक ही है। अब इसका एक फायदा है, इस रिएक्शन को हम कहां यूज करेंगे जब हम पेप्टाइड सिंथेसिस करेंगे। यू नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में जो एसिड क्लोराइड्स बनते हैं दीज आर मोर रिएक्टिव। क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। एसिड क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर्स हमारे लेस रिएक्टिव थे कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां हमने इसको डीएक्टिवेशन के लिए यूज किया था जब हमने एस्टरिफिकेशन किया था। लेकिन अगर हम ये एसिड क्लोराइड बनाएंगे वी आर गेटिंग द मोर reactive derivatives, means we can use this reaction for the activation of the carboxylic group। जब हम चाह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप फास्टली रिएक्ट करें तो हम क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे, बिकॉज रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर स्लो। सो वी हैव टू एक्टिवेट दैट सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम एंड योर रिएक्शन बिकम मोर एफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, उसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे। एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट किया, देन जब कोई आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा देन यू दिस Cl विल इजिली गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हम एक्टिवेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। और अब यहाँ एक्टिवेशन में हमें कोई डी प्रोटेक्शन की या डीएक्टिवेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी बिकॉज जो ये हमने जो Cl लगा इटसेल्फ इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसे आपका दूसरा कोई ग्रुप आएगा, यहाँ पे सपोज करो NH2 आया फ्रॉम द अनदर अमाइनो एसिड। ठीक, अमाइनो एसिड का जो NH2 इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक हियर। ठीक, एंड इट विल डिस्प्लेस दिस Cl, इट विल कम आउट एज ए लिविंग ग्रुप। तो क्या बॉन्ड बनेगा, CONH विच इज ए पेप्टाइड बॉन्ड।
तो आगे हम पेप्टाइड सिंथेसिस करेंगे, देन वी कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. For protection of amino group, we can use benzoylation reaction. For deactivation, we can use the esterification. तो आपको मैंने मोस्टली ये रिएक्शंस बता दी जो आगे हमें यूज करनी है. ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? यस सर. ओके, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन, सी दिस डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डीकार्बोक्साइलेशन? इट इज एलिमिनेशन ऑफ द CO2. तो अगर आपके मॉलिक्यूल से CO2 रिलीज होता है, then this process is known as decarboxylation. You know, सर इज इट द रिमूव मतलब एलिमिनेशन ऑफ CO2 और COOH? it is elimination of the CO2, release of the CO2. Your ओके H will सर. remain as it is here. You can see here H is जी there. सर. Okay. So whenever we do heating of the carboxylic acids, carboxylic acid की जब हम heating करते हैं, then it will eliminate the CO2 or it will release the CO2. ठीक है. और we can also use decarboxylating agents like barium oxide or certain enzyme can be used for this purpose. ठीक है. तो हमारे अमीनो एसिड्स में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. So when we treat amino acid or we heat this amino acid, then we get this amine by the release of this CO2 gas. So for this purpose we can use heating as well as we can use barium oxide or certain enzymes. Decarboxylating enzymes भी हमारे पास होता है. ठीक है. So in reaction you will get the amine as a product. अब देखो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जब मैंने इनिशियल क्लासेस में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था अबाउट द अमीनो एसिड्स, आई टोल्ड यू दैट हिस्टिडीन बिकम द सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड. ओके, इन केस ऑफ द एलर्जी कंडीशंस. एलर्जी कंडीशन में इट बिकम एसेंशियल बिकॉज ड्यू टू decarboxylation of this histidine in presence of enzyme. In biological systems you are having enzymes, so decarboxylation will take place and you will get histamine. This is histamine, and we are getting this histamine after the release of the CO2 in presence of the enzyme. And why this process is taking place in case of allergic conditions? Because our body need to produce this histamine, because this histamine is a causative agent against the allergy and shock condition. ठीक है. एलर्जिक कंडीशंस अगर आपकी बॉडी में आ रही हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदर एलर्जेंस या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब आपके जा रहा है, जैसे कोई आपके बैक्टीरिया या वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है एंड इट विल प्रोड्यूस द हिस्टामीन बिकॉज इट विल न्यूट्रलाइज. ठीक है. और जो हमारे एंटीबॉडी, हिस्टामिन गैस्ट्रिक जो रिएक्शंस होते हैं शायद उसमें भी हेल्प हाँ करता है. में भी बहुत सारी जगह हो सकती हैं और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, बट जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इट एक्ट एज ए कॉसेटिव एजेंट इन केस ऑफ द एलर्जी कंडीशंस. ठीक है. तो हमें इसको रिप्लेनिश करना पड़ता है बॉडी के अंदर, अदरवाइज एक टाइम के बाद में क्या होगा, इट विल बिकम डेफिशिएंट. कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में हिस्टिडीन की. सो वी नीड टू टेक दैट थ्रू डाइट. ठीक है. तो उसको करते रहिए, रिप्लेनिश करते रहेंगे तो हम लोग वी कैन बेटर फाइट अगेंस्ट द एलर्जेंस. अनदर रिएक्शन विच इन्वॉल्व the carboxylic group and it will also involve the amino group. Both will take part here if we are heating amino acids. ठीक है. अमाइनो एसिड्स को अगर हम हीट करें, then what will happen? They will lose water and they will convert into the cyclic derivatives. This is called substituted piperazine derivative, because now two molecules will come closer and they will lose water molecules, H from the NH2 group and OH from the carboxylic group, forming a cyclic derivative. ये एक और रिएक्शन है, ये भी आप नोट कर लो साथ साथ.
अमीनो एसिड का इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रीजन बीइंग कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो जब आपका बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स होंगे देन आपका एंटीबॉडीज भी बॉडी के अंदर ज्यादा फॉर्म होंगी, और अगर आपकी एंटीबॉडी ज्यादा है इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम बेटर फाइट करेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर किसी को लग रहा है कि एलर्जी कंडीशन या कोई भी आपको बॉडी में जैसे आपके जुकाम या जब आपको कुछ भी ऐसा होना फील हो, तब आप उस टाइम पे प्रोटीन इंटेक जो आप नॉर्मली यूज करते हो उसके कंपेयर में आप इंक्रीज कर दो, एंड ट्राई टू अवॉइड द यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का और उसका अपोजिट रिएक्शन होता है, अपोजिट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो हमारे एंटीबॉडीज को भी किल करती है, जो बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जो उनको भी किल करती है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपका इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है कंपेरेटिवली। उस इसलिए बेटर क्या है कि हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए एंड ट्राई टू improve the performance of the immune system. Now see the next reactions which are due to the presence of the amino and the carboxylic group both. So in these reactions amino as well as the carboxylic group both will take part in the reaction. एक ये important reaction है, reaction with heavy metal ions such as Cu+2, Ag+ or Hg+2. cupric ion, Ag+ and Hg+2. So in this type of reactions, amino acid will act as a bidentate ligand. लिगेंड जानते हो क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं लिगेंड्स? सर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ा था सर कि कोई आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम से बाइंड करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आयन और एटम नहीं, मेटल आयन के साथ में इफ वी आर हैविंग ए मॉलिक्यूल, ठीक है, विच इज हैविंग ए डोनर एटम। डोनर एटम कौन सा होता है? विच हैज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस विच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन। तो जैसे हमारे पास यहाँ ग्लाइसिन है, ठीक, इट हैज डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम्स हैं यहाँ पे? 2 donor atoms are there, OH and NH2. Both have lone pair of electrons, so both can donate their electron pair to the metal ion. So this is called a ligand. Since it has 2 donor atoms, so it is bidentate. अगर 3 donor atoms होते तो tridentate. EDTA में 6 donor atoms होते हैं, so EDTA is called hexadentate ligand. So ligands are those molecules which have a pair of electron to donate to the central metal ion or to the metal ion. ठीक है, तो ये होता है ligands. तो glycine will act, you can say glycine or any other amino acid will act as a ligand, as a bidentate ligand when it is treated with the metal ion. And here we can use Cu+2, Ag+ or Hg+2 ions. So when we use this Cu+2 ion, we get a complex. Ligands और जो metal ions है, they form the complex. ये देखो यहाँ पे OH ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और इधर से NH2 ने किया, and to the other side this NH2 donate and this O will donate electron pair to the Cu. ठीक है, so like this way 2 moles of the glycine will react with the 1 mole of the metal ion to form this complex. This is 1:2 complex. The ratio between this is 1:2. 1 ratio copper metal ion and 2 ratio of the ligand.
So this complex has deep blue color. कैसा कलर होगा इस कॉम्प्लेक्स का? डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर। ठीक है, सो वी कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स विल गेट प्रेसिपिटेटेड व्हेन वी आर यूजिंग मेटल आयन। अभी इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन्स गेट प्रेसिपिटेटेड। आपको पता है ना, जो प्रोटीन्स होती है हमारी वो वाटर सॉल्युबल होती है वाटर सॉल्युबल। जो हमारा आप देख लो ना, मिल्क देखो, मिल्क में क्या होता है? केसीन प्रोटीन होती है। मिल्क यस और सर। वाटर का क्या होता है? सॉल्युबल मिक्सचर होता है, मिसिबल मिक्सचर होता है, वाटर एंड प्रोटीन बोथ आर देयर एंड दीज आर इन सॉल्युबल स्टेट। एम आई राइट? यस सर। क्यों होते हैं सॉल्युबल प्रोटीन्स? बिकॉज दे आर चार्ज्ड मॉलिक्यूल, दे आर फाउंड इन इंटरनल सॉल्ट फॉर्म, ज्यूट्राइन फॉर्म में होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स भी ज्यूट्राइन फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि जब हमने मेटल आयन डाला तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विद मेटल आयन। चाहे हम अमीनो एसिड हो, हमारे पास अमीनो एसिड का सॉल्यूशन हो या फिर प्रोटीन का सॉल्यूशन हो, जब आप मेटल आयन डाल दोगे इट विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज insoluble in the water, in the solvent, जो भी सॉल्वेंट आप यूज करो, सो इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। जब वो सॉल्युबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो अगर आप मिल्क के अंदर कॉपर सॉल्ट अगर आप डालोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट प्रेसिपिटेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। हीटिंग पे कर सकते हैं, हम कोई एसिड डाल करके कर सकते हैं, बेस डाल के कर सकते हैं। आप देखते हो ना, जब आपका मिल्क से जब कर्ड बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है तो क्या होता है? मिल्क तो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हमारा कर्ड बनता है तो कैसा होता है? वो सेमी सॉलिड। प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है ना, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म यस में होता सर। है। वो यस कैसे सर। प्रेसिपिटेशन हुआ? सो कैसे पार्शियल प्रेसिपिटेट डाइजेशन हुआ? ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन हो गया। पार्शियल डाइजेशन हो गया, ठीक है। हाँ, कुछ ब्रेक डाउन भी होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, वो भी अलग बात है, लेकिन वो भी वाटर सॉल्युबल ही होंगे। अगर ब्रेक डाउन, अगर आपके खाली सिर्फ ब्रेक डाउन ही हो रहा है ना, then they will also remain water soluble because amino acids और proteins these are soluble। ठीक है, solubility के पीछे और रीजन है। जब आप देखते हो ना, जो हमने बैक्टीरिया यूज करते हैं फॉर इनोकुलेशन पर्पस, डालते हैं ना हम, यस सर। बैक्टीरिया ऐड करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड। लैक्टोज शुगर होती है हमारी मिल्क के अंदर, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? लैक्टिक एसिड। और एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा? जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कौन सी फॉर्म होती है? एसिडिक, कैटाइनिक या एनाइनिक? एसिडिक मीडियम में, सो कैटायनिक। कैटायनिक फॉर्म। कैटाइनिक, कैटाइनिक फॉर्म में आएगा। तो आपको पता है कैटाइनिक फॉर्म की सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू ज्यूट्राइन कम होगी, ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। ज्यूट्राइन ज्यादा यस सॉल्युबल सर। होता है वाटर में, यस सर। बिकॉज वो कंप्लीट सॉल्ट फॉर्म में है। तो जैसे ही आपका एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया, योर प्रोटीन्स विल कन्वर्ट इनटू द कैटाइनिक फॉर्म, और कैटाइनिक फॉर्म की सॉल्युबिलिटी कम होती है कंपेयर टू ज्यूट्राइन फॉर्म, एंड इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड, और वो प्रेसिपिटेटेड हो जाती है। तभी आपको कर्ड है ना थोड़ा सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस आपका हीटिंग पे हो जाता है। जैसे आप एग को जब आप कोगुलेट करते हो, हीटिंग करते हो, तो हीटिंग पे क्या होता है? हीटिंग पे भी इसी तरह से चेंजेस आते हैं एंड इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। तो ये कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, या फिर आप अगर कोई बेस ऐड करते हैं देन इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड, या फिर हम कोई मेटल आयन डालेंगे तो हमारा अमीनो एसिड या फिर जो प्रोटीन से इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन।
रिएक्शन विद निनहाइड्रिन। तो निनहाइड्रिन निनहाइड्रिन क्या होता है हमारा? दिस इज इंडेन 1,2,3 ट्राइओन हाइड्रेट। ट्राइओन का मतलब क्या होता है? ओन मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप, सीओ ग्रुप, सीओ ग्रुप। और यहाँ पे कितने सीओ ग्रुप दिख रहे हैं आपको? 2, बट आई हैव रिटन हियर 3। ट्राइओन हाइड्रेट। एंड वेयर इज थर्ड CO group? Third CO group is here, C double bond O, C double bond O dot H2O। तो क्या बन जाएगा? C double bond O dot H2O। तो ये बन गया 2OH। अगर आप CO ग्रुप के ऊपर H2O ऐड करेंगे देन यू विल गेट 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हो C double bond O dot H2O। दोनों एक ही बात है। तो नेम ऑफ दिस निनहाइड्रिन इज इंडेन 1,2,3 ट्राइओन हाइड्रेट। दिस इज द रिएजेंट विच विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड्स। ये हमने उसमें प्रैक्टिकल क्लास में भी डिस्कस किया था, टू विजुअलाइज द अमीनो एसिड्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको गिवन कंपाउंड है क्या वो अमीनो एसिड्स है या नहीं है, then you can treat your amino acid with the ninhydrin and you will get violet color or deep blue color compound। तो ये हम जब इंडेन 1,2,3 ट्राइओन हाइड्रेट के साथ में अमीनो एसिड को ट्रीट करें, we can take any amino acid, then it will lose 2 water molecules, 2H from here and 2OH from here, so it will form this C double bond N CH R। So this is the intermediate compound which will form during this reaction। ये नोट करो पहले। ठीक है, अब हमारे पास जब ये 1 मोल ऑफ अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन के बाद में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। नाउ this intermediate compound will lose this RCHO and CO2। ठीक है, it will lose this RCHO and CO2। So you will get this NH2 group here, CO, C double bond O and CH, NH2। This is another intermediate compound formed during the reaction। Now you can see here it has amino group। जैसे अभी हमारा अमाइनो ग्रुप अमीनो एसिड के साथ में था, it reacts with the indane। So now this amino group will react with another mole of this ninhydrin। तो ninhydrin का दूसरा मॉलिक्यूल है। So again it will lose water, -2H2O, and it will form this another intermediate compound, double bond N। So this double bond N is here, this part is from this molecule। जो ये वाला है आपका ये इस साइड में है, ठीक है, और जो ये इंडेन वाला है हमारा ये इधर हो गया, इंडेन वाला इधर। So what is going on here? It is losing this H2O, -2H2O। So you can see here it will form C double bond N bond here। Now this will get tautomerized, this intermediate compound will get tautomerized and will convert into this compound which has the violet color। तो ये आप जब यहाँ से देखेंगे this H will shift from here to this CO group and it will become the OH, forming a double bond here। So this compound have the violet color, and because of this violet color you can easily identify the presence of the
अमीनो एसिड्स। जो वायलेट कलर बन रहा है हमारा, इट इज बिकॉज ऑफ द दिस कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन विद निनहाइड्रेन। तो यहां देखो आपके दोनों हाइड्रोजन्स ऑफ दिस NH2 group reacts here. So if you are having only one hydrogen here, if you having amino acids instead of this amino acid, then they will not form this intermediate compound. So you can say amino acid will not react with the ninhydrin and will not produce the violet color. Only amino acid will give this test. तो यहां मैंने लिखा हुआ है ओनली अमीनो एसिड गिव पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रिन, बट इम्यूनो एसिड लाइक प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन फेल्स टू रिएक्ट विद निनहाइड्रिन। ये नोट नहीं किया तो नोट कर लो ये रिएक्शन पूरी। ठीक है, अब पता चल गया आप लोगों को कि जो कल हम जो क्रोमेटोग्राम में जो कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे निनहाइड्रिन से, एंड वी आर गेटिंग दिस वायलेट कलर और डीप ब्लू कलर। तो आज आपको पता चल गया इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कलर्ड कंपाउंड। यस सर। तो ये हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब जो अमीनो एसिड्स की रिएक्शंस थी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स हमने कवर कर लिया है। नाउ वी कैन सी हाउ दिस अमीनो एसिड विल फॉर्म द पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो कि पेप्टाइड्स फॉर्म कैसे होते हैं। Peptides are polymers of amino acids. When two or more amino acids get combined together, they form the peptides. ठीक है, so if two amino acids are there, then these are called dipeptides. If three amino acids are there, then tripeptide, tetrapeptide, and up to 9 units. आप इसी तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। आफ्टर 9 यूनिट्स, इफ मोर देन 9 यूनिट्स आर देयर, देन दे आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड। या इफ मोर देन 100 Excuse यूनिट्स me, आर sir. देयर,